Hello. In this question of capacitance, a slab of dielectric content K of same area of transition and d by 3d by 4 dielectric content. फॉर्मूला क्या होगा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? हियर C dash will be E naught 1 minus d by d 1 minus 1 K. T is the thickness of the slab and K is the dielectric constant. So here E naught is original capacitance 1 minus T. अगर लिखेंगे 3d/4 कैंसिल 1 माइनस 1/k सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3/4 माइनस माइनस 10 हो जाएगा ये विल बी k 1/4 एलसीएम ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 4 will be 4k k plus 3 चला जाएगा 4k c naught 1 k plus. So this is the answer. Option 1 is in this question 2. This circuit is redrawn. So this battery 6 and 6 both are in parallel. So voltage will be the same. But capacitance 2 and 4 in parallel will become 2 plus 4 6. अब 6 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड दोनों सीरीज में हैं तो चार्ज सेम रहेगा. तो Q विल बी CV C सीरीज में है 6.5 तो C1 प्लस 1 C2 अपॉन प्लस C. ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा C एंड V की वोल्टेज है 6. ये 180 डिवाइडेड बाय 11 3.36 माइक्रो कूलम. ऑप्शन टीच कर. This question very simple question, but we must know the sorting wire here. So this 2CP के वाले लास्ट के अगर सॉर्ट कर दें 0 हो गया तो मतलब फाइनल में आपका हिट होगा वो ये वाला C ये वाला C दोनों पैरेलल हो गए. ये दोनों C बाद के शॉर्ट हो गए 0. CC पैरेलल में 2 Q will be resistance effective in it. Simple. The answer. So option is correct. In this question, 2C and C they are in parallel. And हमने इसे P से इसे कनेक्ट कर बैटरी and after charging they are disconnected from the battery. फिर से रिकनेक्ट कर दिया इसको P and में इलेक्ट्रिक कंटेंट मीडियम के फिल कर दिया तो इसका कैपेसिटेंस हो जाए AC. अब बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है. कंजर्वेशन लॉ यूज करेंगे. कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज इनिशियली कितना होगा 2C प्लस पैरेलल में है एंड V इज द वोल्टेज हियर. अब ये पैरेलल में 2 प्लस KC एंड वोल्टेज विल बी न्यू वोल्टेज विल बी yes और दिस कॉमन. हमको V डैश निकालना है. कैंसिल हो गया तो भी 3CV कॉमन ले लिया तब A डैश कैंसिल. now V dash will be CV upon
प्लस के और के प्लस। So is the option 1. And 1 is correct. There are two thin metal plates. One here Q1 is the charge, Q1 here Q2 is the charge. Because of this Q1 minus Q comes here and minus Q2 comes here. So the difference of voltage will be Q1 minus Q2 induction, and half of charge will be distributed here. Q1 minus Q2 divided by 2 and negative में आ जाएगा यहाँ पे minus 1 upon 2. So this is the charge here, and voltage will be Q by C. Tell Q divided by C. C is the capacitance. So Q1 minus Q upon 2. So this is the voltage developed. Potential difference between the across the capacitor will be. So option 3 is correct. In this question, this is the capacitance formed here like this. We redraw it like this is the one plate here, the another plate as shown in, and it is the voltage V2. इस पर voltage दे रहे हैं V1. एंगल बहुत स्मॉल एंगल है अल्फा. ये गैप इनके बीच का ये वाला गैप चल गया. चलो हम इसको इधर स्क्वायर प्लेट हमने इसकी एक एलिमेंटल पोर्शन को कंसीडर कर. अब थिकनेस dx, थिकनेस इज dx, तो डिस्टेंस को हमने y कंसीडर. because alpha is very small, so you know arc length formula is angle in radian, and this is the radius, say x from the start. So it can be written as alpha. Y will be alpha. पूरे को एक साथ एलिमेंटल पोर्शन का हम लोग कैपेसिटेंस लेंगे. तो दिस विल बी DC, स्मॉल कैपेसिटेंस C. हियर एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना हो जाएगा इसका A स्क्वायर है, और ये थिकनेस, एरिया विल बी A इंटू वन गैप D प्लस Y. हियर D प्लस Y की जगह अल्फा x लिख. Integrating this, and limit should be 0 to A. C epsilon naught A बाहर आ गया, dx divided by D plus alpha x, limit from 0 to A. तो इंटीग्रेशन करने के लिए लेट D plus alpha x हमने z ले लिया. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस, D का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने से 0 हो गया. अल्फा इंटू dx विल बी dz. तो dx जगह हम पुट करेंगे 1 by अल्फा कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट A dx की जगह dz by अल्फा, एंड D प्लस अल्फा को हमने z एज लिमिट 0 टू A. 0 टू A लिमिट x की है, z की इसको विल बी ln z को रिप्लेस कर D प्लस अल्फा x, लिमिट है 0 टू A. Put the limit here, alpha naught A upon alpha ln D plus alpha A माइनस जगह 0 लिखेंगे तो D बच जाएगा.
लॉग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लॉग ए माइनस बी लॉग हो जाएगा 1 में टी प्लस अल्फा ए अपॉन टी, तो डी कैंसिल करा के ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा नॉट ए अपॉन नॉट ए अपॉन अल्फा ln 1 plus alpha a upon, as alpha is very small, इनमें लिखा हुआ अल्फा इज वेरी स्मॉल, हम लॉग का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज द लॉग फॉर्मूला 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, तो हियर एक्स इज स्मॉल एंड पे अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह यहाँ लिखेंगे अल्फा ए अपॉन डी, हो जाएगा अल्फा नॉट ए अपॉन अल्फा, एक्स मीन अल्फा ए अपॉन डी माइनस अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी, नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज एक्स वेरी स्मॉल, कॉमन ले लेते हैं अल्फा नॉट ए अपॉन अल्फा ए अपॉन डी 1, अल्फा कैंसिल हो गया, सी विल बी अल्फा नॉट ए हो गया अपॉन डी 1 माइनस ए अपॉन, so this option here is, in this question parallel plate capacitor filled with the electric constant A is equal to 10 here, A is equal to 10 here, and connected across the battery in this earth. The electric slab is replaced by another dielectric slab, second case, that is the 15, then energy of the capacitor will be the initial energy and the final energy. कर लेंगे charge battery plus the battery is connected, so battery connect रहेगी तो voltage same, if battery is connected then voltage same, battery disconnected then charge will be the battery connection here connected, so voltage same, अगर disconnect करते तो charge, हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 k की जगह क्या लिखेंगे k1 10 2 epsilon naught a by d, हम लिख सकते हैं, भी लिख and b square content 10 c naught square, फाइनली हो जाएगा सिमिलरली 10 की जगह 15 है, c naught को निकलना है परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी, change will be change final minus initial upon initial 100, can be written uf upon u I initial minus 1 into 100, कर देंगे वैल्यू फाइनल 1/2 15 e naught v square upon by 2 10 v square, हो जाएगा 1/2 e naught v square, 15/10 means 3/2, 3/2 means 1.5 minus 1 in means 0.5 multiplied by 100, so it will be 50% increase, 50% increase energy, here option 1 is correct. Question 8, two identical capacitors as shown in figure, in first figure case 1, first figure case 1,
All the three capacitance are in series. Second case, all the capacitors are in parallel. So in first case C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा है ए अपॉन टी, जो गैप है वो 3/3 टी और चला जाएगा। सिमिलरली C2 यहाँ पर हम हो जाएगा सिमिलरली C3 K3 सब सीरीज में है तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1/C विल बी 1/C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C1 उल्टा हो जाएगा यहाँ 3/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A प्लस 3/3 K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D/3 K3 एप्सिलॉन नॉट A। हम ये सब कॉमन ले लेते हैं। D/3 एप्सिलॉन नॉट A 1/K1 1/K2 K3 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग K1 K2 K3 लिखेंगे हम K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2 will be D/3 एप्सिलॉन नॉट। अगर उल्टा करते हैं तो C will be 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 K3 में K1 K3 K1 K3 K1 K3 जो कैपेसिटेंस हम 1 ले ले फर्स्ट केस। अब लिखेंगे हम सेकंड केस केस 2 में तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा C2 विल बी यानी सेकंड केस का C2 ना कि ये C2 तो चाहे डैश लिख कन्फ्यूज डैश लिख पैरेलल में है C1 प्लस C2। C1 कितना हो जाएगा यहाँ पर K1 एरिया का 1/3 है A/3 एंड डी गैप पूरा हिस्सा कर लिए K2 हो जाएगा बस यहाँ K3 आ जाएगा। हम लोग कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D K1 प्लस K2 प्लस K को निकलना है E1 एनर्जी का रेशियो देखते हैं हाफ CV स्क्वायर। सो एनर्जी इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय एनर्जी इन सेकंड केस देगा हाफ C1 डैश स्क्वायर अपॉन हाफ डैश वोल्टेज सेम है हाफ ऑफ कैंसिल ये कैंसिल C1 डैश अपॉन C2 डैश। हम लोगों ने C1 डैश C2 डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं विल बी 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 K3 अपॉन K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K3 K1 अपॉन 2 डैश एप्सिलॉन नॉट A अपॉन TD
K1 plus K2 plus K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैंसिल हो गया, ऊपर चला जाएगा, या 9 K1 K2 K3 on K1 plus K2 plus K3 will be K1 K2 plus K2 K3 plus K3. So here option is correct.